Dear students, in this lecture we continue topic line integral of a vector point function f on curve C. We have already discussed in the last lecture line integral of a vector point function f on curve C is given by C f dot dr. It is just a representation of a line integral of a vector point function on a curve C that can be written as f dot dr by dt. Now we write line integral of a vector point function on curve C in component form. Suppose in component form, let say f factor is equal to f1i plus f2j plus f3k, where f1, f2 and f3 are function of a variable x, y and z. And say r vector क्या represent करता है यहाँ पर? r vector represent the position vector of any point on the curve. उस curve पर कोई भी arbitrary point है उसका position vector को represent करता है. Let r vector is equal to xi plus yj plus zk, or dr by dt from that dx by dt I plus dy by dtj plus dz by dtk, because here we take x, y, z are the function of parameter t. So therefore that equation 1 can also be written as, say, C replacing f factor by f1i plus f2j plus f3k and dr by dt by dx by dt I plus dy by dtj plus dz by dtk. So we have, say, f1i plus f2j plus f3k dot dx by dt I plus dy by dtj plus dz by dtk dt. So from this we have f1 dx by dt plus f2 dy by dt plus f3 dz by dt are into में dt. That term can also be written as f1 dx plus f2 dy plus f3 dz. It is just representation. It is f1 dx plus f2 dy plus f3 dz. Z is the representation of that term. It does not mean इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझो कि इसको dt से dt कैंसिल कर दिया, यहाँ से dt को कट कर देगा, यहाँ ये dt इस dt को टी करेगा. नो, ये जस्ट इसके लिए क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि दैट टर्म कैन आल्सो बी रिटन एज f1 dx plus f2 dy plus f3 dz. So therefore we have f dot dr is equal to integral our curve C f1 dx plus f2 dy plus f3 dz. Now discuss some definition of closed curve and simple closed curve. ए कर्व इज सेड टू बी ए क्लोज कर्व. किसी भी कर्व को आप क्लोज कर्व कब कहेंगे? जब उसका इनिशियल और फाइनल जो टर्मिनल पॉइंट होंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपस में क्या कर जाए, कंसाइड कर जाए, तो वो कर्व हमारा क्या कहलाएगा? क्लोज कर्व. इन केस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कंसाइड ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड ए क्लोज कर्व. और सिंपल क्लोज कर्व का मतलब है ए क्लोज कर्व विच डज नॉट a closed curve which does not intersect itself anywhere. एक closed curve हो but वो अपने आप को कहीं भी intersect नहीं करता हो, that curve is called the simple closed curve. For example, that is, say, from it is the initial point and it is the final point. Initial and final point coincide here, so it is a simple closed curve. From that, if we rotate this, it is also a closed curve. Here initial and final point coincide, but these intersect itself at one point, so it is not a simple closed curve. It is a closed curve but not a simple closed curve. समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लोज कर्व का मतलब है कि जहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट उस कर्व के कंसाइड कर जाए, और सिंपल क्लोज कर्व का मतलब है कि ऐसा क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर. नेक्स्ट वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्कुलेशन? अगर जो कर्व सी है, अब तक हम कर्व की बात कर रहे थे कि हम लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन अलोंग ए कर्व सी. अगर वो कर्व सी क्या हो जाए, सिंपल क्लोज कर्व हो जाए, तो जो लाइन इंटीग्रल होगा दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल. से वी से
it is a circulation. If C is a simple closed curve, C is a simple closed curve, that is a curve which do not intersect itself anywhere, then the tangent line integral, then the line integral of f around C is called the circulation of f about C. मीन्स पहले वाले टॉपिक्स में अगर कर्व की टाइप सिंपल क्लोज कर्व हो जाए तो उस लाइन इंटीग्रल को क्या बोल देते हैं, सर्कुलेशन बोल देते हैं. एंड इट इज डिनोटेड बाय that symbol is used for circulation मतलब जो कर्व आपके पास C है वो कर्व की जो नेचर है वो किस टाइप की है, वो कर्व हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व दे रखा है. अगर कर्व की जो नेचर है अगर वो सिंपल क्लोज कर्व है तो वी यूज दैट नोटेशन दैट सिंबल यूज्ड फॉर सर्कुलेशन. That can be written as say C f dot dr by dt, and that also can be written as f1 dx plus f2 dy plus f3 dz. ये हम पीछे वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि ये टर्म इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है. ओके, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, से वर्क डन बाय ए फोर्स. नेक्स्ट टॉपिक वर्क डन बाय ए फोर्स. ये टॉपिक हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस भी कर चुके हैं. इस टॉपिक में क्या होता है कि एक कर्व है हमारे पास, एक कर्व C है, पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक. हम इस कर्व पर कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P एज्यूम करते हैं या लेट एज्यूम किया. इस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O ए फिक्स पॉइंट, तो विच इज इक्वल टू से R वेक्टर, एंड दैट लाइन रिप्रेजेंट द टेंजेंट वेक्टर. ये क्या रिप्रेजेंट करती है, टेंजेंट वेक्टर ऑन दैट कर्व, tangent vector on that curve. And F is any force acting at point P. F is any force acting at point P. सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक बीड है या कोई भी एक रिंग है जिसको हम इस कर्व के अलोंग मूव करना चाहते हैं. मतलब पॉइंट A से पॉइंट B तक हम उसके पास लेके जाना चाहते हैं. तो उस रिंग को या बीड को जब पॉइंट A से लेकर B तक लेके जाएंगे तो हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे. तो ये पॉइंट मान लिया कि अब आपके पास रिंग यहाँ पर है और यहाँ पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया. जो फोर्स है, फोर्स का जो इफेक्ट होगा भी इसको रिंग को मूव करने के लिए अलोंग द कर्व, वो किसके अलोंग होगा, टेंजेंट टू द कर्व होगा. मीन्स देयर इज नो इफेक्ट टू परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट इन दैट डायरेक्शन है. तो फोर्स का जो टोटल इफेक्ट होगा, जो फोर्स के द्वारा जो एक्चुअल वर्क डन होगा टू मूव द रिंग अलोंग द कर्व इज, वो हमारा टेंजेंट के अलोंग होगा. तो देयर इज नो वर्क डन इन दैट डायरेक्शन. सो टोटल एक्चुअल वर्क डन, तो जो एक्चुअल वर्क डन होगा हमारा किस डायरेक्शन में होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स अलोंग द टेंजेंट वेक्टर. तो इफेक्ट ऑफ फोर्स अलोंग द टेंजेंट वेक्टर हमारे पास क्या होगा, projection of F on that unit tangent vector, projection of F along that tangent vector, that is equal to force. and जब ये फोर्स इस रिंग को पॉइंट A से लेकर B तक मूव कर रहा है तो इस फोर्स की वजह से ये मान लेते हैं कि वो उसको कितने डिस्टेंस पे मूव कर देता है, डिस्प्लेसमेंट हम क्या ले लेते हैं, ds. और जो वर्क डन होता है, वर्क डन की जो डेफिनेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट. हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे इस आर्टिकल में. लेट कर लेते हैं, लेट सी बी एनी कर्व ज्वाइनिंग पॉइंट A टू B. सी हमारे पास कोई भी एक कर्व है जो पॉइंट A से लेकर पॉइंट B को ज्वाइन करता है. लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल एट पॉइंट P ऑन द कर्व. इस कर्व P पर हमने कोई भी एक पॉइंट कंसीडर किया से P. तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज गिवन बाय R वेक्टर विच इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस में zk कैप, वेयर x y z आर द फंक्शन ऑफ पैरामीटर t. तो देयरफॉर ये कोई भी कर्व है, ये इसके ऊपर P पॉइंट पर कोई भी पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पर इसके अलोंग जो टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज डिनोटेड बाय dr by dt. तो देयरफॉर dr by dt इज द टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व C एट पॉइंट P. इफ S, अगर हम ये मान लें कि S इज द आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ है हमारे पास वो क्या है हमारे पास S. if S is the arc length of that curve, then dr by ds, हम dr by ds से क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, then dr by ds represent a unit vector along the tangent to the curve C at point P. यूनिट वेक्टर क्या होगा, P पॉइंट पर along the tangent.
अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट ये है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके अलोंग ये पी पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है टेंजेंट वेक्टर, इसके अलोंग टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वो हमारा क्या कहलाएगा यूनिट वेक्टर, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, डी आर बाई डी एस से। तो देन डी आर बाई डी एस represent a unit vector along the tangent to the curve C at point P. So that is dr by dc, a vector divided by its magnitude. Suppose a force F act upon a particle at point P and particle is displaced along a path C of arc length S. मीन्स इस पॉइंट P पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, एक फोर्स अप्लाई कर दिया जो यहाँ पर उस पार्टिकल को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एस, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एस मूव करना चाहता है। मतलब हमने इस पी पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया और ये फोर्स इस पार्टिकल को आगे ले जाना चाहता है। मान लिया कि वो उसको कितने डिस्टेंस पर लेके चला गया है, ds डिस्टेंस पर लेकर चला गया है। तो देयरफॉर तो दैट इज एक्चुअल वर्क डन। तो एक्चुअल वर्क डन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर है। तो जो टोटल वर्क डन किस डायरेक्शन में हुआ, जब फोर्स अप्लाई किया और जो भी पार्टिकल था वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब जो टोटल वर्क डन है वो इस टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन में किया गया है। तो टोटल वर्क डन, एक्चुअल वर्क डन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट वेक्टर, तो विच इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, विच इज इक्वल टू कितना वर्क डन होगा इस एफ वेक्टर की वजह से इस डायरेक्शन की ओर पे, तो कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग that tangent vector, component of f vector along tangent vector means projection of f vector along the टेंजेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू, हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देयरफॉर इस एफ वेक्टर का टेंजेंट वेक्टर के अलोंग क्या इफेक्ट हुआ, मतलब कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग टेंजेंट वेक्टर इज इक्वल टू एफ डॉट बी वेक्टर का काम कौन कर रहा है, डी आर बाई डी टी, एफ डॉट डी आर बाई डी टी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी टी। ये तो हमारा होगा टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स अलोंग टेंजेंट वर्क, और कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया और उस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है, ds। तो दैट इज एक्चुअल वर्क डन along the direction of tangent vector dr by dt is equal to projection of f on dr by dt, that is equal to force into में displacement which is equal to ds। हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो therefore f, the projection of f on dr by dt can be written as a dot b upon magnitude of b into में ds f, और जो ये टर्म है dr by dt by magnitude of dr by dt, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dr by ds से। तो f डॉट dr by ds इज इक्वल टू ds विच इज इक्वल टू f डॉट dr। ये इस टर्म को लिखने की जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप ds को ds से कट करके f डॉट dr लिख रहे हैं, नहीं, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ f डॉट dr। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन अलोंग द कर्व C, तो पूरे कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग कितना वर्क डन होगा। अब इस जो पार्ट हमारे पास, इसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं अलोंग द कर्व C f डॉट dr, दैट गिव द टोटल वर्क डन अलोंग द कर्व C। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस सम न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 7 from exercise 5.2, find the work done in moving a particle in a force field F which is equal to 3x square I cap plus 2xz minus yj cap plus zk cap along the line joining the point 0 0 0 2 2 1 3। हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे रखा है और एक कर्व दे रखा है, और वो कर्व क्या है, इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से बनता है। तो दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से कर्व क्या बनेगा, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन कोई किस में है वो स्ट्रेट लाइन, इन द 3D। तो हमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास गिवन है, एफ फैक्टर की इक्वेशन लिख दी, 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2xz माइनस yj कैप प्लस zk कैप, और वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इन 3D 3 डायमेंशंस में, अगर आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं x1, y1, z1 और x2, y2, z2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट इज x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। तो यूजिंग दिस कंसेप्ट
we have the equation of a line joining these 2 points, which is equal to x by 2 इक्वल टू y बाई 1 इज इक्वल टू z बाई 3। ये तीनों टर्म जब आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब वो आपस में किसी न किसी एक नंबर के इक्वल होंगी। तो वो नंबर हमने क्या मान लिया से t, मतलब एक पैरामीटर के इक्वल होगी, वो पैरामीटर हमने क्या ले लिया से t। फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट x इज इक्वल टू 2t, फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट y इज इक्वल टू tt, फ्रॉम दिस वी गेट z इज इक्वल टू 3t। तो x इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू t एंड z इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आ गया सेम प्रोसेस है जो आपने पहले भी क्वेश्चन किए थे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj कैप प्लस zk कैप। नाउ कन्वर्टिंग दैट पोजीशन वेक्टर इन पैरामीट्रिक फॉर्म, रिप्लेसिंग x by 2t, y by t, z by 3t, we get this. Differentiating that term with respect to t, we have this. Now writing the f vector, now writing f vector in also in parametric form, replacing x, y and z by 2t, t and 3t, and we get the f vector in the parametric form. And also in the last article we have discussed the work done in moving a particle in force field from point 0, 0, 0 to 2, 1, 3 is given by f dot dr which can be written as f dot dr by dt into में dt along the curve। हमने क्या देखा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग दिस। तो यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2t। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2t, बट x खुद किसके बराबर है, 2t। तो इसका मतलब 2t कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2। तो देयरफॉर t वेरीज फ्रॉम 0 to 1। आल्सो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, y के कोरस्पोंडिंग भी देख सकते हैं, y की कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक। y खुद किसके बराबर है, t। तो इसका मतलब t भी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर 1 तक। अब z की कोरस्पोंडिंग भी देख सकते हैं, z कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेकर 3 तक। तो z को रिप्लेस कर दोगे 3t से, तो मतलब 3t कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेकर 3 तक। तो इसका मतलब t कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर 1 तक। तो सिंस x वेरीज along line from 0 to 2, तो और बट x खुद किसके इक्वल है, x हमारे पास 2t के इक्वल है। तो देयरफॉर 2t is greater than equal to 0 less than equal to 2, this implies t is greater than equal to 0 less than equal to 1। तो therefore t varies along line from 0 to 1। तो therefore t इस लाइन के corresponding कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेकर 1 तक। तो therefore we have वर्क डन। तो therefore वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ डॉट डी आर, एफ की वैल्यू पुट कर दी और एफ डॉट डी आर किसके इक्वल था, डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी, डी टी इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया, लिमिट 0 to 1 लिया। आफ्टर सिंप्लीफाइंग जब हम इसको सोल्व करते हैं तो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी डू सम नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 शो दैट हमसे पूछा गया है कि इंटीग्रल, और इस सिंबल के साथ है, ये सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सर्कुलेशन का मतलब जो हमारे पास कर्व दे रखा होगा वो कर्व क्या होगा, सिंपल क्लोज कर्व है। तो शो दैट दिस आर डॉट डी आर अलोंग द सर्कल। सर्कल क्या होता है आपके पास, एक सर्कल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक सिंपल क्लोज कर्व होता है। तो सर्कल सी विच इज गिवन बाय, या इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू 0 इज 0। मतलब इस सर्कुलेशन की वैल्यू, मतलब इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हमें क्या शो करनी है कि वो क्या आ जाए हमारे पास, 0। तो सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड जेड की वैल्यू क्या है, 0। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा। आर का काम किससे लेंगे, ए से, थीटा की बजाय हम क्या लिख लेते हैं, टी। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी, y इज इक्वल टू ए साइन टी और z इज इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, x इज इक्वल टू ए कोस टी, y इज इक्वल टू ए साइन टी एंड z इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। और t कहाँ तक लाई करेगा सर्कल में, थीटा 0 to 2 पाई। इसका मतलब t कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेकर 2 पाई। तो इस कर्व की कॉरस्पॉन्डिंग t वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। नाउ आगे आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व मीन सर्कल, इज given by xi plus yj plus zk, putting the value of x खुद किसके बराबर है, a cos t के, putting the value of y a sin t, putting the value of z 0, we get from this r
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी दिस एफ वेक्टर खुद किसके इक्वल है, एफ डॉट डी आर होता है एफ डॉट डी आर, बट एफ वेक्टर खुद किसके इक्वल दे रखा है, आर वेक्टर के। तो देयरफॉर एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, और आर वेक्टर खुद किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है, ए cos ti a sin t j प्लस में 0। पुटिंग दिस वी नो दैट सर्कुलेशन ऑफ एफ डॉट डी आर विच कैन बी रिटन एज, एयर एफ खुद किसके इक्वल है, आर के, आर डॉट डी आर डॉट, और इसको क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी इंटू में डी टी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर from this, putting the value of r from this here, putting the value of dr by dt from this here, r यहाँ पर भी है, putting the value of r, putting the value of dr by dt and from this doing their scalar product i के i के साथ होगी, तो ये बनेगा माइनस ए स्क्वेयर कोस टी साइन टी, ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर साइन टी कोस टी 0 0, ये आपस में कैंसिल आउट, तो दैट इन वैल्यू इज इक्वल टू 0। यही हमें शो करना था कि जो ये सर्कुलेशन है इसकी वैल्यू क्या आ जाए 0। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।